In this problem, we are given two lists, the head of those two, and here we have to merge those sorted lists into one and return the head of the sorted list. Here we can see the example. Here are two lists 1 2 4 and second list 1 3 4, and the output we get here is the sorted list of the list 1 and list 2 after they are merged into one. We will compare each element of the list, and whichever is smaller we will add that to another sorted list. The output of this would be 1 2. See, first it would compare 1 to 2, so obviously 1 is smaller than 2. Okay, 2 is smaller, so 2 would come, and then 3, then 4, then again 4, then again 5. Okay, it will compare each elements. Now to compare each elements, we will create some variables and some dummy nodes. Okay, dummy node is just a new node where we will compare each nodes of list 1 and 2, and we will uh, attach them in a sorted fashion. So once we have created a dummy node, we will have a pointer. Okay, we can name this current, which would say the current index of the element. So initially we can initialize current to dummy, the same dummy node. Okay, and we will just initialize this dummy node as -1, because the constant which we have is that the nodes will be from 0 to 50, so it is better to initialize dummy nodes as -1. So now we have created them both. We will run a loop till both lists does not encounter null. So we will run a while loop till list 1 and list 2 does not encounters null. Okay, now we will compare the value of L1. Okay, see, are already provided with the heads of both lists, so we will compare. Okay, if the value of L1, which is list 1, is smaller than the value of list 2, then we will simply add. Okay, we will simply add this, like right now dummy node is -1, right, and we have two elements. Like we can see that we have 1 and 2, so list 1 is 1 and list 2 is 2. Okay, so obviously list 1, the head of list 1 is smaller, so we would add the node, okay, to the dummy node. So this would be 1 3 and 5, and then null. Okay, so now once we have this, then it will again check.
You know, let me do a thing. Let me rewrite them all so we can understand it very easily. Okay, 1, 3 and 5 null, then 2, 4 and what do we have here? 2. Okay. Okay. It would also have null. Okay. So first we have -1. Okay, the head of the dummy node. Then it will compare 1 and 2. Obviously 1 is smaller, so it we would once we compare, we will add add list 1 to the dummy node. So it would go like 1, 3, 4 and null. Okay, now it will we will increment the position of list 1. Okay, because we have already used list 1. Okay, so we will increment it. Now it will check the value of list 1 with list 2. So the updated position of list 1, it has the value which is 3, and the value of 2 is 2, so 2 is smaller. So what will happen is, here we have current element. We will also track. Okay, we will have a pointer named current. We will first, okay, for we don't have that much space, so we will just write C. Okay, the tracker C is right now on dummy, but once we attach any element, we will increment it, so it would go to 1. Now current, now we will once we have checked, okay, that the value of list 1, which is 3, is greater than the value of list 2, so we will add the smaller element, which is list 2. So list 2, so it have 2, and then again it have 4 and 5, then null. Yes, now once we have done this, it will break the nodes, the previous nodes, so the new nodes would become like this. Okay, and now once we have found the smaller element, which is 2, we will also increase the position. We will update the position of list 2 to the next element, to the next node. So the list 2 would be, the position would be here, right, at 4. So now it will compare 4 with 3. Okay, it will both will compare now. The value of list 1 and list 2 both will compare. And also we would, once we have attached the new node, we will update the current index. Okay, so the current index would be current is equal to current dot next. Wait a second, current would be current dot next. So it was here, right here, so it would go here. Now it will again check list 1 and list 2. So obviously list 1 is smaller, which is 3,
So what will happen here, that current is 2, so current dot next would attach 3. Okay, so this would break the previous nodes and here 3 would come, so 3 and 4, then null. Okay, then again update the current. Now the current is on 3, and also update list 1. So now the list 1 is right here in 4. Okay, so now the value of list 1 will compare with the value of list 2, which is both are 4, so nothing would happen and we would just increase the current index. So now the current index would be here at 4. Okay, and now wait a second. Okay, once we have 4 here, so both 4 will come right here. Once we have written the element of list 1, we will compare it with list 2. Okay, so both are 4, so the value of list 1 would be as it is. Now once the 4 become current, so we will increment it. Okay, we will increment the list 1 again, the position of it. Now list 1 has reached null. Once it has reached null, that means we have already merged the list 1 into our new node, so we can just add the remaining elements to the merged list. So we would remove null from here and we would add the remaining nodes. Okay, so this is how the logic would work. I know this is slightly confusing, but once देख, पहली बात तो मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर मुझे ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट ये एक्चुअली में बहुत ही इजी है समझना, ज़्यादा दिक्कत है नहीं कुछ. ठीक है, बेसिकली हमारे पास दो लिस्ट्स दिए गए हैं. ठीक है, दो लिस्ट्स है, उसके हेड्स हमारे पास है, उनका पोजीशन हमारे पास ऑलरेडी है. तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को सिंगल लिस्ट पे मर्ज करना है, हमें बस ये करना है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये किया, पहले एक नया नोड क्रिएट कर लिया गया, डमी यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नया नोड डमी क्रिएट कर लिया गया और एक डमी, उस डमी को -1 से इनिशियलाइज कर दिया गया. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, एक बार हमने एक पॉइंटर को क्रिएट कर लिया और एक डमी नोड को क्रिएट कर लिया. ठीक है, उसके बाद हमें बस दोनों को कंपेयर करना है, 1 छोटा है या 2. अगर 1 छोटा है तो हमें उसका पोजीशन को इंक्रीज़ कर देना है, लिस्ट 1 का, वो 3 पे आ जाएगा. ठीक है, और जैसे -1 वाला जो डमी था उसको बस ऐड कर देना है, अटैच कर देना है इसको ये वाले नोड से, तो ये पूरा लिस्ट ऐड होते रहेगा इस पे. और एक बार फिर करंट को
अपडेट करेंगे हम लोग, एक बार करंट अपडेट करेंगे, एक बार लिस्ट को अपडेट करेंगे, है ना। तो करंट अपडेट हुआ, फिर वापस से ये चेक करेगा कौन छोटा है, फिर छोटा वाला ऐड होगा, ऐसे करके ऐड होते जाएगा, ठीक है। इसकी एल्गो लिख देता हूँ थोड़ी सिंपल सी। पहले क्रिएट करेंगे हम न्यू नोड को, चलो न्यू नोड लिख देता हूँ, और उसको इनिशियलाइज करेंगे विथ -1, ठीक है। दूसरा, एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, मान ले करंट नाम से पॉइंटर क्रिएट करें, एंड इसे सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे डम्पी की पोजीशन में, डमी की पोजीशन में, ठीक है। देन we will run a loop, okay, we will run a loop, while loop, जिसपे list1 and list2 दोनों नल नहीं रहेंगे, तब तक हम कंपेयर करेंगे list1 की एलिमेंट और list2 की एलिमेंट, ठीक है। अगर list1 की एलिमेंट छोटी रहती है, अगर list1 का एलिमेंट छोटा है, वैल्यू छोटा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो करंट का नेक्स्ट है उसे हम बना देंगे list1। एक ये काम करेंगे और एक काम करेंगे, list1 को अपडेट कर देंगे ताकि वो नए पोजीशन में चल जाए, तो list1 डॉट नेक्स्ट। और अगर list2 छोटा रहता है तो हम सेम चीज़ करेंगे, बस करंट डॉट नेक्स्ट को list2 बना देंगे, उसको ऐड कर देंगे list2 से, ठीक है। और list2 को का पोजीशन को इंक्रीज कर देंगे, तो list2 डॉट नेक्स्ट। एक बार ये लूप चलते रहेगा, ये कंपैरिजन एक बार अगर ख़त्म होता है, एक बार ये कंपैरिजन ख़त्म हुआ, फिर हम क्या कर सकते हैं, करंट का पोजीशन को करंट को अपडेट करते रहेंगे, वरना वो ओवरराइड करते जाएगा। तो करंट को बना देंगे करंट डॉट नेक्स्ट। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, खुद को समझाने की अच्छे से, क्योंकि अगर मैं किसी को समझाऊंगा तो मुझे वो क्वेश्चन और अच्छे से समझ आएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली में आज सर ने कराया था, एंड उस समय ठीक ठाक समझ आ गया था, एंड मैं ये क्वेश्चन बना भी लूँ, जैसा भी मैंने बना लिया। बट दिक्कत वहाँ आती है, जैसे अगर मुझे किसी को समझाना हो तो उसमें दिक्कत आती है, मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है नॉर्मली ही, लेकिन ये सब चीज़ें पे रिस्क नहीं लेने का ना, क्योंकि ये इम्प्रूव होनी चाहिए पढ़ाई वाले पे, क्योंकि ये मैटर करेगा आगे जाके। तो इसे इम्प्रूव करने के लिए मुझे समझाना चाहिए, एंड एक बार समझा लूँ तो मुझे अच्छे से वो उसकी कॉन्सेप्ट एंड वो प्रॉब्लम, उसकी पैटर्न सब समझ आ जाएगा, याद रह जाएगा। तो उसके लिए चलो कहाँ था भाई, मैं कहाँ था, करंट डॉट नेक्स्ट। हाँ, एक कंपैरिजन का ख़त्म हो गया, list1 और list2 का दोनों को अटैच कर दिया गया है, पोजीशन भी चेंज कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। उसके बाद हम करंट को भी करंट डॉट नेक्स्ट बना देंगे। कैसे बनाएंगे, जो करंट है वो जिस एलिमेंट को ऐड करेगा वो नया एलिमेंट को नया करंट बन जाएगा, ठीक है, बेसिकली। हाँ, अब एक बार ये हो गया, बस इतना में हमारा 80% काम हो चुका है। अब हमें बस रिमेनिंग आइटम्स, अगर मान लेते हैं कोई लिस्ट है, जैसे list1 अभी मेरा नल पहले पहुंच गया था,
ठीक है, तो लिस्ट वन नल ऑलरेडी पहुंच गया तो लूप से वो बाहर आ जाएगा। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग लूप के लिए बस सिंपली जो बाकी रह गया है लिस्ट टू पे उसे ऐड कर देते हैं। जैसे इफ, ठीक है, अगर लिस्ट वन, अगर नल, लिस्ट वन को नल मिल गया है, वो नल बन चुका है, ठीक है, तो हम सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू L2 कर देंगे, वो फिर कनेक्ट हो जाएगा L2 से। एल्स अगर L2 हमारा नल बन चुका है तो सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट को L1 कर देंगे। ये बाकी का सारा एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा था, जैसे यहाँ हमारा 1 3 4 हो चुका था, 2 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 3 4, ओके, ये 1 3 4 है एंड 2 4 5, ये दो लिस्ट था जिसमें ऑलरेडी हमारा, जैसे ये हमारा डमी नोड का इंडेक्स था जो हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया था, उसके बाद 1 आया था क्योंकि 1 उसके बाद छोटा था, उसके बाद आया था 2, उसके बाद आया था 3, उसके बाद आया था 4। तो इसका 1 ऑलरेडी कवर हो चुका था, इसका 2 ऑलरेडी कवर हो चुका था, एंड लिस्ट 1 का 3 एंड 4 ये दोनों भी कवर हो चुका था। इसके बाद हमें मिल गया था नल, यहाँ पे हमें नल मिल गया था, तो हमारा 4 और 5 जो है लिस्ट 2 का वो बाकी रह गया था, तो उसे सिंपली हमने इस एक लाइन से हमने वो ये दोनों को भी कर दिया। जैसे करंट डॉट, जैसे 1 में हमारा नल मिल गया था यहाँ पे 4 के बाद, ठीक है, तो हमारा रिमेनिंग 4 और 5 बच गया था, तो हम सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। जैसे करंट मेरा 4 है तो 4 डॉट नेक्स्ट को सिंपली यहाँ कर दिए L2 से, L2 की पोजीशन यहाँ पे थी इसी समय, तो ये हो गया 4 5 एंड देन नल, राइट। तो ये आ गया हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में लिस्ट। सिंपली हम फिर रिटर्न कर देंगे इस हेड को एंड वो फिर पूरी लिस्ट को वो रिटर्न कर देगा। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n+m, जहाँ पे n हमारा आता है नंबर ऑफ नोड्स, ओके, नोड्स इन लिस्ट 1, और m आता है नोड्स इन लिस्ट 2। ये दोनों का एडिशन बन जाएगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसे इस केस में हमारे पास 3 नोड्स थे लिस्ट 1 में एंड 3 नोड्स थे लिस्ट 2 में, तो हमारा बेसिकली बन गया 3 + 3 7, ये रह गया हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में, ठीक है। एंड हाँ, हमने वाइल लूप यूज़ करा है बट फिर भी हमारा ऑर्डर ऑफ n × m नहीं आया है, ये नहीं आया है हमारे पास, n+m आया है क्योंकि एक टाइम में हम एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं एंड एक ही बार मूव कर रहे हैं। हमारा पॉइंटर सिर्फ एक ही बार मूव कर रहा है, इसलिए वो n × m नहीं है बल्कि n+m है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात किया जाए तो वो है ऑर्डर ऑफ 1। हमने इस पे एक्स्ट्रा स्पेस ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करा है,
नया नोट्स वगैरह भी ज़्यादा कुछ करा नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट करे हमने जो कांस्टेंट स्पेस लेता है। तो स्पेस वुड बी ऑर्डर ऑफ 1 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ऑर्डर ऑफ n+m। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, नया डमी नोड क्रिएट करना है। तो दिस नोड एंड इसे इनिशियलाइज करना है विथ -1। ओके, एंड एक और हमें करंट नाम का ट्रैकर भी इनिशियलाइज करना है, और ये इसे डमी से डाल देना है, डमी से इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, अब एक लूप चलाना है कि जहाँ पे जब तक लिस्ट 1 नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक नहीं होता नल, एंड लिस्ट 2 भी जब तक नल नहीं होता है, तब तक कंपैरिजन होगा लिस्ट 1 डॉट वैल्यू का और लिस्ट 2 डॉट वैल्यू का। अगर लिस्ट 1 डॉट वैल्यू अगर छोटा होता है, देन अभी जैसे करंट डमी पे है, ठीक है, तो उससे कनेक्ट कर देना है लिस्ट 1 से। तो करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू लिस्ट 1, एंड लिस्ट को अपडेट भी कर देना है। तो लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट। राइट राइट। नाउ अगर लिस्ट 2 छोटा है तो उसके लिए करंट डॉट नेक्स्ट हमारा बन जाएगा लिस्ट 2, एंड लिस्ट 2 भी अपडेट हो जाएगा लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट से। और हर कंपैरिजन के बाद we will update current। okay, so current is equal to current dot next। now एक बार नल रीच हो जाएगा, उसके बाद अगर नल रीच हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स या रिमेनिंग नोड्स को ऐड कर देना है। तो if list 1 is equal to null, then simply current dot next is equal to list 2। ओके, अगर 1 में नल पहुंच गया तो लिस्ट 2 का जितना एलिमेंट्स है वो भी ऐड कर दो, है ना। बट अगर लिस्ट 2 नल है, देन लिस्ट 1 के एलिमेंट्स ऐड कर दो भाई, क्या दिक्कत है ना। अब बस हमें क्या बोला है, रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज्ड लिंक्ड लिस्ट, है ना। तो डमी हमने क्रिएट किया नया मर्ज्ड लिंक्ड लिस्ट, तो बट उसे हमने इनिशियलाइज किया था -1 से, तो डमी डॉट नेक्स्ट उसका हेड बना के उसे रिटर्न कर देते हैं। नाउ अब टेस्ट केसेस भी एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट हाँ जी, अच्छा, यहाँ पे लिस्ट 1 की जगह सिर्फ लिस्ट लिखा हूँ भाई, और कहीं गलती है क्या कुछ? सही, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, है ना।
यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ मेरी सबमिशन रन टाइम मेमोरी है ना, एंड यू कैन सी सेम कोड था, राइट। ओके, चलो बाय बाय। शूल